Am I visible? Yes, yes, doctor. Yes, yes. So I'm visible and audible both. Yes. रितु जी आप आ गए इसमें? Good afternoon, sir. Good Yes. afternoon to all of you. And the importance of today's day, you all know, is that the World Health Organization was founded on this day in 1950, and since that day, on different themes, WHO and all its member countries have been organizing the World Health in the world. And medical sciences, biomedical technology has made tremendous leaps and bounds in the past 75 years. And since Dr. Agarwal is a very busy person and we are very fortunate to have him with us here today, I will not take much more of his time. Just to introduce him briefly, I request my colleague, Mr. Rakesh Tripathi, Education Officer, National Science Center, to give a brief introduction of Dr. Agarwal, and then we will hand over the stage to Dr. Agarwal. Thank you and welcome to all of you. Thank you and namaskar आप सभी को. I think all of us are very much familiar with the name of Dr. K.K. Agarwal, well-known doctor and philosopher of Indian culture. Dr. Agarwal is very famous in society for his motivational medical view. Dr. Agarwal is very well known as doctor and philosopher. He has dedicated his life in service of mankind by conceptualizing low-cost health apparatus, making the people aware about the health and make them conscious, and to propagate low-cost Medicare facilities. He is recipient of a very prestigious Padma Shri Award, Vishwa Bharati Samman, Dr. B.C. Ray National Award and National Science Communication Award. He is also recipient of Sahitya Shri Award by Delhi State Sahitya Sammelan in 2007. And many more are there. जो अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद सारा समय हमारा उसी में निकल जाएगा. Dr. Agarwal has a Limca book, 3 Limca book records on CPR10. He's a very good TEDx speaker and I think इनकी motivational and medical speech हम सब ने अपनी life में कई बार सुनी है. He's the president of Heart Care Foundation of India and he was the president of Medical Council of India and Delhi Medical Association, DMA. So Dr. Agarwal today basically he will discuss on the occasion of World Health Day with us the 75 years after post-independence, what are the basically achievement of medical sciences in India, and we will talk about the present scenario of the corona and the disease and the communicable disease also. So we have a very large gathering on a Google Meet, and simultaneously the same program is basically we are sending live on our YouTube channel also. So I just hand over the dais and the stage to Dr. Agarwal. Dr. Agarwal, please, sir. Thank you, National Science Center, Delhi. When Rajesh Tripathi ji contacting us, मेरे को इस प्लेटफॉर्म में बोलना है, I was very happy because I always love to talk to children of this platform. I've done it many times in the past. And I'm talking about today at a time when there is a disturbing news coming from UP. यूपी से खबर ये आ रही है कि वहाँ के वाइस चांसलर को KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कोविड हुआ, फिर पहला वैक्सीन लगा, फिर दूसरा वैक्सीन लगा और उसके बाद में फिर कोविड हो गया. Not a good thing to have. That means a person suffered from COVID-1, then vaccine 1, vaccine 2, and now with COVID again. It means this COVID is disturbing us. So I'm going to be the reverse way. I will talk about COVID first, and then I will go to the achievements of the country. So this COVID is now spreading in the children, and all of you are the children.
All of you, couple of days back, the government said that there is a fatigue. There is a fatigue. Now, fatigue किसमें है? Fatigue बच्चों में है. Frustrated कौन है? बच्चे frustrated हैं. Elderly frustrated नहीं है, वो तो घर में आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं. These are the children who are active. Therefore, आज नेशनल साइंस सेंटर के बच्चों को what I want to say is, some analysts, they want to ask question. Yes, देव शर्मा सवाल पूछिए. Yes, सवाल पूछिए बेटे. ये सवाल पूछिए अपने अपने. आप सवाल पूछिए, that will be easier because I agree with you. Children are restless. तो अगर आपके सवाल हैं तो सवाल पूछिए. Kindly raise your Rajesh Kumar. Yes, खुशहाल चंद जी सवाल पूछिए. Yes बेटे. सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर कल रात को 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक जो लॉकडाउन लगा था वो किस लिए लगा था? लॉकडाउन सरकार ने जो लगाया है, हम सरकार की नीति को तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है रात को तो वो इसलिए लगाती है कि यंगस्टर्स जो रात को 10 बजे के बाद पार्टियां करते हैं और लोग अगर शराब पीते हैं तो 10 बजे के बाद पीते हैं, तो उससे बीमारियां ना फैले. दिल्ली में और मुंबई में जो लॉकडाउन रात के समय लगा है वो सिर्फ उसी समय में लगता है जब बीमारी 100 में से 10% लोगों को अगर टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, यानी कि 100 लोगों का टेस्ट किया, अगर 10 लोग उसमें पॉजिटिव आते हैं तो फिर ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं. लेकिन आज की डेट में पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई है इससे, क्योंकि एक तरीके से तो हम बोल रहे हैं कि रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि 24 घंटे वैक्सीन लगेगा. तो इसके बारे में सरकार को, दिल्ली सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अगर मेरे को रात के 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना तो मैं रात के 10 बजे के बाद वैक्सीन कैसे लगवाऊं. लेकिन जब भी बीमारी ज्यादा फैलती है तो रात को हमारे को किसी भी हालत के अंदर में रात को कर्फ्यू लगाना पड़ता है. देव शर्मा बोलिए. हेलो. यस बोलिए. हेलो सर, मेरा नाम नीलम है. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर कि सर ये जो स्कूल्स हैं कब खुलेंगे सर? ये स्कूल्स कोविड-19 की वजह से बंद हुए हैं सर, ये खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये समझ नहीं आ रहा है. ये सवाल तो सरकार ही ले पाएगी. मेरा मानना सिर्फ ये है कि बच्चों के अंदर में ये बीमारी हल्की फैलती है, बच्चों में ये बीमारी हल्की होती है, और बच्चों में ये बीमारी बड़ों के मुकाबले कम दिन तक रहती है, और बच्चों की इस बीमारी से मौत नहीं होती. जिनकी उम्र 20 साल से कम है उन बच्चों को सीरियस कोविड नहीं होता. सरकार जब चालू करना चाहे चालू करे, लेकिन बच्चों के अंदर में ये बीमारी खतरनाक नहीं होती. क्या बच्चे दूसरों बच्चों को बीमारी दे सकते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन रेट कम होता है. जितने जैसे जैसे उम्र, बच्चों की डेफिनेशन कोविड के हिसाब से 12 साल की है. 12 साल से ऊपर का बच्चा नहीं है, उसे एडल्ट माना जाएगा. उसको रिस्क वही है जो एडल्ट को है, लेकिन 12 साल से कम के बच्चों को खतरा ना के बराबर. बाकी पॉलिसी सरकार बनाएगी कि कब खुलना चाहिए, कब नहीं खुलना चाहिए. अगर आप मेडिकल एसोसिएशन की बात करें तो हम लोग हमेशा से यही सपोर्ट करते आए हैं कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि स्कूल अगर आप लेट खुलोगे तो ये बीमारी तो अभी 2 साल तक नहीं जाने वाली, तो कब तक आप स्कूल को बंद करके रखोगे. तो उसके हिसाब से स्कूल को खोलना सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए. यस, पुनीत बुधिया जी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हेलो पुनीत बुधिया जी बोलिए. हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर. बेटे नाम बोलो अपना. सॉरी, आई एम ईशा बासी. सर मुझे ये पूछना था, जो कोरोना वैक्सीन है उससे क्या फायदा है? देखिए ऐसा होता है
कि जब आपके घर में एक सांप आए यस सर। और वो सांप आपके घर में आए तो आप उसको डर जाते हो, यस सर। तो फिर अगली बार ना आए आप पूरी तैयारी करते हो, ठीक है। यस सर। अगर मैं आपके घर में मरा हुआ सांप डाल दूं और आपको नहीं पता वो मरा हुआ है, तो भी आपका रिएक्शन तो सेम होगा, हाँ जी सर। आप पूरी तैयारी कर लोगे अपने हिसाब से। तो मरा हुआ जो सांप मैंने आपके घर में डाला उसे हम कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो बोलते हैं मरा हुआ सांप डाल दिया। अगर मैंने आपके घर में सांप लिया और सांप के अंदर से मैंने उसकी जो जहर निकाल दिया और उसकी मुंडी को मैंने आपके घर में डाल दिया, तो रिएक्शन सेम होगी। तो मेरे शरीर में हम वायरस का प्रोटीन का जीन डाल देते हैं, वो मेरे शरीर में जाके वायरस के एक हिस्से को पैदा करता है और मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देती है। जब मेरे शरीर में आप वैक्सीन डालोगे तो मेरे शरीर में पुलिस बनेगी, स्पेशल पुलिस बोलते हैं इसको, स्पेशल पुलिस फोर्स, और वो जब भी दोबारा से वायरस आएगा उसको मार देगी। तो इसको हम बोलते हैं कि या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो या फिर वैक्सीन में हो। तो वैक्सीन में हम वही प्रोटीन जो वायरस का है उसको नपुंसक बना के हमारी मसल में डाल देते हैं ताकि हमारे शरीर में उसकी पुलिस बन जाए, इसे वैक्सीन बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए बेटा। My name is Tinu. Sir, as you told us that there is a case in UP, वहाँ पे मतलब किसी को वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो गया सर, ऐसा क्यों? नहीं, वैक्सीन के बाद तो सबको कोरोना हो रहा है, मुझे उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन तो सरकार खुद ही कह रही है 70% इफेक्टिव है। इसका मतलब है वैक्सीन के बाद में 30% लोगों को तो कोरोना होगा। ये तो आप तो खुद ही पढ़ रहे हो ना कि 70% इफेक्टिव है। हाँ तो जी। सरकार भी मान रही है कि 100 में से 70 में से 100 लोगों को वैक्सीन लगा, 30 लोगों को तो कोरोना होगा, लेकिन हल्का होगा। सबसे पहली बात, मैंने जो केस आपको बताया है वो डिफरेंट है। मैंने कहा उसको पहले कोरोना हुआ, फिर वैक्सीन लगा, फिर वैक्सीन लगा, और अब उसको कोरोना दोबारा हो गया। चार चीजें होती है उसके साथ में। इसका मतलब है कि ये जो वायरस है वो चिप वाले वैक्सीन पे काम नहीं किया। ओके। तो इसका मतलब ये है कि हम सब लोगों को प्रिकॉशंस लेनी है, लेकिन याद रखिए वैक्सीन जब दोबारा, बच्चों में वैक्सीन सीरियस नहीं होता, दोबारा इन्फेक्शन सीरियस नहीं होता, वैक्सीन के बाद में कोरोना सीरियस नहीं होता, तो डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें अपने को बचा के रखना है। सर बट ऐसा होने से सर पेंडेमिक का पीक टाइम के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो इसका कोरोना पीक टाइम अभी आया कहाँ है? अभी तो वेव्स आ रही हैं। ओके। तो पीक तो हम कब बोलेंगे? अभी तो पहली वेव थी, अब ये भारत में दूसरी वेव आ गई है। अभी हमें क्या पता तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी, चौथी वेव आएगी कि नहीं आएगी। दिल्ली में चौथी वेव है, तो पीक तो हम तब बोलेंगे ना कि पहले तो हमें पता ही नहीं कितनी वेव आनी है। अगर आप बोलोगे कि सेकंड वेव के बाद थर्ड नहीं आएगी, तो सेकंड के पीक को हम पीक बोलेंगे। पीक तो एक पहाड़ की तरह है ना, पहले एक पहाड़ आया, अब दूसरा पहाड़ आ गया, दूसरा वाला पहाड़ पहले वाले से ही ऊंचा है। अभी तीसरे के बारे में तो हमें पता नहीं है। जब तक 100% लोगों को इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, ये वायरस कहाँ से जाएगा? ये बताइए ना, ये तो नया वायरस है, ये तो 100% पॉपुलेशन को तो इन्फेक्ट करेगा ना, तो पीक्स तो आएंगे, हमें तो देखिए समझ लीजिए एक चीज को कि वायरस को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले देखिए कि चमगादड़ के सरफेस पे ये वायरस होता है, लेकिन चमगादड़ को कोविड नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है? मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों का दिमाग बड़ों से डिफरेंट चलता है। सबसे पहले आप ये सोचो कि चमगादड़ को कोविड नहीं होता, चमगादड़ को निमोनिया नहीं होता, वो भी मैमल है। तो सबसे पहले जाके ढूंढो चमगादड़ ऐसा क्या करता है कि उसको वायरस उसके शरीर में है, लेकिन वो दूसरों को वायरस देता है, लेकिन खुद को उसको कोविड नहीं होता। तो सबसे पहले चीज जो आती है, चमगादड़ ड्राई फ्रूट्स बहुत खाता है, खासकर अंजीर और खजूर बहुत ज्यादा खाता है। तो सबसे पहले ढूंढो, हो सकता है कि ड्राई फ्रूट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट हो,
अंजीर के अंदर में इसका इलाज छुपा हुआ हो। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, आप भी लोग ढूंढो, क्योंकि इसमें तो डॉक्टरी नहीं चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ढूंढो कि ऐसी क्या चीज है। अब ये जो चमगादड़ है उल्टा लटकता है, उल्टा तो हम नहीं लटक सकते, तो इसका मतलब है उल्टा लटकना तो इलाज नहीं हो सकता है उसका। तो चमगादड़ के अंदर में कोई ऐसी चीज है जो इस बीमारी को बचा रही है, उसके बारे में सोचो। दूसरा, ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे खाने पीने में गड़बड़ हो रही है, ये बीमारी बढ़ गई। कोई तो ऐसी खाने पीने की गड़बड़ है, कोई तो ऐसी चीज है जिसने हमारी ये बीमारी को बढ़ा दिया है। अब देखिए, हमारे खाने में 6 टेस्ट होते हैं। पहला है तीखा, खट्टा और नमकीन। दूसरा है मीठा, कड़वा और कसैला। इसमें से जो 2 खाने हैं, कड़वा और कसैला, ये वायरस को पसंद नहीं है। कड़वा और कसैला मेरे शरीर में ड्राइंग करता है सेल के अंदर में। सेल ग्रोथ को बढ़ाने वाला है स्वीट, और सेल ग्रोथ को कम करने वाला है कड़वा एंड कसैला। अब देखिए अपनी डाइट में कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोगों ने कड़वा कसैला लास्ट 20 साल से खाना बंद कर दिया हो। मेरे को तो यही कारण नजर आता है कि आप सब लोगों ने मीठा, नमकीन, खट्टा ये ज्यादा खाना चालू कर दिया, और जबकि जितना मीठा हो उतना ही कड़वा हो, उतना ही कसैला हो। और जब आपने कड़वा और कसैला डाइट से निकाल दिया तो वायरस तो आपके अंदर जाएगा ना, उसको भी तो वही पसंद है जो आप खा रहे हो। जो वायरस को पसंद नहीं है वो है कसैला और कड़वा। कड़वा एंड कसैला, जिसे हम बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, दे हैव ड्राइंग प्रॉपर्टीज। ये सेल ग्रोथ को चेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल को प्रोलिफरेट करेगा, ये उसको चेक करेंगे उसके साथ में। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। दूसरा, हम सब लोगों ने हमारे टीचर्स को यस सर और यस मैडम बोलना चालू कर दिया। कौन है? मधु मैडम, सरिता मैडम मेरे को पढ़ाती हैं। आपने तो आदर छोड़ ही दिया है। अगर आप अपने टीचर्स को और बड़ों को आंख से आंख ना मिला के नीचे झुक के बात करोगे तो वायरस आएगा ही नहीं। वायरस तो तभी आएगा जब आप आंख से आंख मिला के बात करोगे, और इन्फेक्शन जाएगा एक से दूसरे को। अगर आप नीचे झुक के बात करोगे तो उसका वायरस ऊपर से गया, आपका वायरस नीचे चला गया। अब स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो तो कहते हैं हम तो बड़े हो गए, टीचर को आप आंखें मिला के बात करते हो, पेरेंट्स से आंखें मिला के बात करते हो, दादा दादी से आंखें मिला के बात करते हो। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है ना। वायरस क्यों फैल रहा है हमारे पास? पहले क्यों नहीं फैलता था? ये वायरस तो हमारे यहाँ सालों से है। कोरोना वायरस नया वायरस तो नहीं है, ये उसकी ब्रीड नहीं है। कोरोना तो हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। आप लोगों के घर में कुत्ते हैं? अगर आपके घर में डॉग है तो पूछो कौन सा वैक्सीन लगा। हर साल कोरोना का वैक्सीन लगता है कि नहीं लगता? हर डॉग में कोरोना का वैक्सीन लगता है, क्योंकि कोरोना डॉग में अगर डायरिया हुआ तो कोरोना का वायरस है। वायरस तो वही फैमिली है ना, इसकी ब्रीड बदल गई है। कुत्ता तो वही है, ब्रीड बदल गया है। आप कहते हैं ना कि डॉग है, नई ब्रीड का डॉग आ गया है, इसकी ब्रीड बदली है ना। वायरस तो सेम है। अगर ये वायरस अपॉर्चुनिस्टिक बन के हमारे पास में आया है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हम गलतियां कर रहे हैं। हम लोग पहले किसी के घर जाते थे तो पहले हम जूता बाहर उतारते थे, पैर को धोते थे, फिर अंदर जाते थे, हाथ को धोते थे। कहते थे ना, सफर से आए हो हाथ मुंह धो लो। आजकल कहाँ चला गया हाथ मुंह धोना? तो जो हमारे यहाँ पे जो हैंड वॉश था वो तो सदियों से चला आ रहा है। अब वायरस को दिख गया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है ना हाथ धोती है, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग करती है, ना एक दूसरे का आदर करती है, और खाने के अंदर में ना कड़वा खा रही ना कसैला खा रही। वो आ गया। ये वायरस नया नहीं है, इसकी ब्रीड नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर दैट। ये वायरस नया नहीं है, इसकी ब्रीड नहीं है। और अगर ये ब्रीड चली गई फिर आएगा। अगर आप सोचते हो ये वायरस दोबारा नहीं आएगा, फॉरगेट इट, फिर आएगा। इससे पहले भी, पहले सार्स बन के आया, फिर मर्स बन के आया, अब ये कोविड बन के आया, फिर आएगा ये वायरस। अगर हम लोगों ने अपने आप को नहीं बदला तो फिर आएगा ये वायरस। यस सर। तो हमें अपने आप को बदलना है, और बदलने का काम सिर्फ आप लोग कर सकते हो, हमारी उम्र के लोग नहीं कर सकते।
आप लोग बदल सकते हो दुनिया को। आप लोग जो पिक्चरें बनाते हैं, आप लोगों का नाम लोगों ने पिक्चरों में रखा चिल्लर पार्टी। आप लोग क्यों नहीं लड़े सारे लोग बच्चे मिलके कि पिक्चर के अंदर में हमारा नाम चिल्लर क्यों रखा? लड़ना चाहिए था। वो पिक्चर बड़ी फेमस हुई, किसी बच्चों ने रिएक्ट नहीं किया, किसी स्कूल ने रिएक्ट नहीं किया। हम चिल्लर थोड़ी हैं। तो अगर आप लोग तो देश की शान हो, आप लोग अगर समझ लो तो ये वायरस क्या कोई भी दुनिया में टिक नहीं सकता। और सवाल पूछिए। यस बेटे, यस कर और सवाल पूछिए। Good afternoon, sir. बोलिए बेटे। Sir, I am Aparna. You said that chances of getting corona in girls is less than boys. Sir, No, why? मैंने नहीं बोला। मैंने बोला लड़कियों में बीमारी कम खतरनाक होती है, नंबर 1। नंबर 2, मेंस्ट्रुएशन के दौरान सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। अगर आज कोरोना हुआ, सिम्टम्स आए और कल से आपके पीरियड है तो इसकी सीवियरिटी कम हो जाती है। औरतों में सीवियरिटी कम होती है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स जो आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास सिर्फ 1 है, तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। क्या आप जानते हो कि लड़कियों को देवी क्यों बोला जाता है? नो सर। क्यों बोला जाता है बताओ? No, आपके शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छा खाने से। एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से मिलते हैं? फीमेल से। तो एनर्जी हमारे यहाँ आती ही माँ से है। तो ऐसे याद रखो कि हम लोग जो हैं, कोरोना हमें तंग नहीं करेगा, तो इसलिए लड़कियां आके लीड करें। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, हल्का होगा। Okay, sir. Thank you, sir. अब आप अगर आज की डेट से अगर आप चीनी, चावल, मैदा जो कि सारा शुगर है ज्यादा खाना चालू करोगे तो धीरे धीरे वायरस तो क्या दुनिया भर के वायरस आके आपको तंग करेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग खाने के अंदर में कड़वा और कसेला डाल दें, कैसे याद रखेंगे कड़वा और कसेला? किसी को मेरा नाम पता है? मेरा नाम क्या है? अनिशा जी, मेरा नाम क्या है? डॉक्टर। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। डॉक्टर अगर आप मेरे उसमें से डॉक्टर हटा दे तो क्या नाम है? के अग्रवाल। नहीं, अग्रवाल हटा दो भैया, अभी थोड़ी देर के लिए के बोलो ना। वैसे तो मैं के नानू हूँ, आप सबका तो नानू हूँ वैसे तो मैं, लेकिन के कैसे याद रखेंगे? के फॉर कड़वा, कै फॉर कसेला। अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि का फॉर के, का फॉर कड़वा, का फॉर कसेला। किसके लिए? का फॉर कोरोना, का फॉर कोविड। एक्सक्यूज मी सर। कड़वा में क्या है? का फॉर करेला। एक्सक्यूज मी। का फॉर केक फल। तो काफी याद रखो, सब याद रहेगा। बोलिए कुशाल जी, बोलिए का फॉर जी, बोलिए का फॉर कुशाल, बोलिए। सर कसेला के बोलो बेटे। कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई दूसरा पूछे। सर मैं आई। बोलिए, अपना नाम बोलिए और सवाल पूछिए। सर माय नेम इज मयंक कुमार। बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया सर वैक्सीन के बारे में, तो क्या हम शॉर्टर एज ग्रुप के लिए ऐसा वैक्सीन पहले से तैयार कर सकते हैं कि उसे देने पे कोरोना वायरस अटैक ना कर पाए उसका कोई शॉर्टर एज ग्रुप पे? यस, तो ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल वैक्सीन की, इस पे काम चल रहा है। यूनिवर्सल वैक्सीन का मतलब है कि सारे कोरोना वायरसेस पे उस पे काम कर जाए। वैक्सीन बनाने में समय लगता है, पूरी दुनिया उस पे लगी हुई है आज की डेट में, क्योंकि ये बिना बताया आया, ये बता के वार्निंग देके नहीं आया, तो इसलिए पूरी दुनिया आज की डेट में यूनिवर्सल वैक्सीन पे काम कर रही है। लेकिन जब तक यूनिवर्सल वैक्सीन नहीं बनता तब तक का फॉर कड़वा, का फॉर कसेला और एम फॉर मास्क, ये 3 चीजों को आप ध्यान में रखिए। का फॉर कड़वा, का फॉर कसेला। तो
तो आप लोग जब घर में जाएंगे तो माँ से बोलिएगा कि मेरे को हर मीठे के साथ में एक कड़वा आइटम दो। बोलो आज से आलू मटर बंद, आलू मेथी दो। आज से आलू मटर बंद, आज से आलू मेथर दो। नेक्स्ट सवाल लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर जो आपने केफर कड़वा को बोला ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जो केफर कसला है मतलब जो दूसरे वाला वर्ड था वो क्या है? मतलब ये कसेला टेस्ट इज सुना। एस्ट्रिंजेंट। केफर कड़वा, कड़वा means bitter and astringent, कसेला means astringent जो खाना होता है उसे हम बोलते हैं कसेला। जैसे कैथे का टेस्ट होता है, बनाना का जो टेस्ट होता है उसे हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। उसे हम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। नहीं हुआ? चेक करो वहां दबाओ। उसे हम, एक मिनट, डॉक्टर साहब आई होप कि थोड़ी देर में आ जाएंगे डॉक्टर। डॉक्टर साहब यस डॉक्टर अग्रवाल आर यू देयर? मुझे आप वेट कीजिए, लगता है डॉक्टर अग्रवाल के कनेक्शन में कुछ दिक्कत है, वो अभी हमको ज्वाइन करेंगे। ओके कोई बात नहीं। सर डॉक्टर अग्रवाल, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके बच्चों, थोड़ा दिक्कत थी कनेक्शन में। डॉक्टर अग्रवाल वापस आ गए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। ओके सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से, बेटा अपना माइक एक बार सब म्यूट कर दो और वीडियो भी म्यूट कर दो ताकि नेटवर्क दिक्कत हमारी ना रहे। डॉक्टर अग्रवाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर यू आर म्यूटेड। डॉक्टर अग्रवाल सर आप म्यूट पे हैं। सर आपका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रही ढंग से। अभी आ जाएगी। अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बोलिए। हाँ सर अब आवाज आ रही है। यस सर आ रही। ओके बच्चों, एक बार आप सब यस बोलिए, सवाल पूछिए। सर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका अभी आंसर। पूछो ना, मैं तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा पूछो। सर जो केपर कसेला
कसेले तो का क्या मतलब होता है होता है मतलब? स्ट्रिंजेंट, कड़वा होता है बिटर, और कसेले का मतलब होता है स्ट्रिंजेंट। जैसे दालें, राजमा, रौंगी, इनको कसेला बोलते हैं। और कोई सवाल पूछे? सर कोरोना के लिए कितना वैक्सीन कब बनेगी? बेटा वन बाय वन मैं बोलता हूँ, आप एक एक करके पूछेंगे, ठीक है? सर गिलोय कोरोना के लिए कितना इफेक्टिव है? क्या चीज? सर गिलोय कोरोना के लिए कितना इफेक्टिव है? गिलोय भी, कड़वा भी है, कसेला भी है। तो जो भी कड़वा और कसेला होगा वो काम करेगा। ओके सर। गिलोय है, अश्वगंधा है, ये सारे कड़वा और कसेला है। ये यहाँ से सर मैं यूज करता हूँ। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऊपर ला के दिखाओ क्यों चलता है। ओके डॉक्टर सर, एक क्वेश्चन बच्चे ने चैट बॉक्स में पूछा है कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या वो कोरोना के सारे स्ट्रेन के लिए है या कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए है? नहीं, आज की डेट में वो पुराना, अभी तो पुरानी स्ट्रेन के लिए ही है, लेकिन नई स्ट्रेन में भी थोड़ा सा तो काम करेगा ना। अगर आप आईफोन बेसिक खरीदोगे तो थोड़ा सा तो काम करेगा ना वो। आज की डेट में हमें इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है किसी को भी, बट डेफिनेटली इट विल वर्क। Good afternoon, sir. My name is Niku. Good afternoon, sir. बोलो बेटे। My name is नीतू। सर वो मेरे को ये पूछना था कि जो वैक्सीन लग रही है उसके साइड इफेक्ट्स कितने आ रहे हैं? जैसे शुगर का कोई पेशेंट है, बीपी का है, तो उनमें तो इसकी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना अगर डायरेक्ट। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, अगर आपकी बीमारी कंट्रोल में है तो कोई रिस्क नहीं है। तो सर अगर बीमारी कंट्रोल में नहीं है फिर अगर बीमारी कंट्रोल में नहीं है तो नहीं है? पहले कंट्रोल में करो। ओके, थैंक यू सर। अगर आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है तो पहले कंट्रोल में करो। सर जब वो कंट्रोल हो जाएगी कंपल्सन है कि आपको वैक्सीन लगवाना ही है। क्या चीज? और सर जैसे रूरल एरियाज में कंपल्सरी किया गया है कि आपको वैक्सीन लगवानी ही है, चाहे आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं है तब भी। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है आज की डेट में। कोई भी वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं हो सकता। आपको एजुकेशन दी जाएगी और आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि मुझे वैक्सीन नहीं चाहिए तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन वैक्सीन लगवाना चाहिए। अगर वैक्सीन को फोर्स करना होता तो पोलियो कभी का फोर्स करके लगा दिया होता। ओके डॉक्टर सर, एक क्वेश्चन जो है सभी के मन में आता है कि हमारे पास इंडिया में 2 वैक्सीन अवेलेबल है, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो दोनों में क्या फर्क है और कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है या कौन सी लगवानी चाहिए? तो इसमें कुछ जब आप खाना खाने जाते हो तो 2 प्रकार के खाने मिलते हैं आपको। एक होता है बुफे और एक होता है अला कार्ट। बुफे का मतलब है थोड़ा थोड़ा खाना सब चीजों का मिलेगा। वो कोवैक्सीन है। उसमें वायरस के सारे पार्ट्स मिले हुए हैं आपके, थोड़े थोड़े थोड़े। कोविशील्ड इज अला कार्ट। वो सिर्फ वायरस का प्रोटीन है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, प्रोटीन कंपोनेंट। सो ये अब हम लोग हाई रिस्क के अंदर में जो बिल्कुल हाई रिस्क है उनको हम लोग कोवैक्सीन दे रहे हैं, बाकी सबको जो मर्जी दे दो। सर वन क्वेश्चन, वैक्सीन सर लेने के बाद फीवर क्यों आता है? क्यों नहीं आएगा? अगर लड़ाई होगी, वैक्सीन अंदर गया, पुलिस बनेगी, और अगर पुलिस बनेगी तो लड़ाई क्यों नहीं होगी? लड़ाई होगी तो बुखार आएगा। तो बुखार इज नॉट ए बैड साइन। अगर बुखार आता है तो बुखार इज ए गुड साइन। इसका मतलब है कि मेरे शरीर में लड़ाई हो रही है और मेरे शरीर के अंदर में वैक्सीन बन रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सर, एक जनरल क्वेश्चन, ये बच्चे यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास में थ्रू आउट इंडिया से जुड़े हुए हैं और सारे ये बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हैं, 1 साल से घर में बंद हैं। ये जितने बच्चे हैं ये सारे 1 साल से लगभग घर में बंद हैं, ना ये पार्क में जा पा रहे हैं, ना
बड़ी गैदरिंग और फंक्शन में जैसे हम लोग जाते थे, तो इन सब बच्चों के मन में जो मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि क्या वो सिचुएशन वापस जल्दी आएगी कि हम लोग एकदम बिना मास्क के वापस घूमे बाहर, पहले जैसे खाते पीते थे, इंडिया गेट पे जाके आइसक्रीम खाए या घूमे, वो सिचुएशन कितने 1 साल 1.5 साल में आ पाएगी या अभी हमें लंबे समय तक ऐसे ही रहना पड़ेगा? भाई आज की डेट में हम कुछ नहीं कह सकते, बट आज की डेट में तो हमें प्रिकॉशंस लेनी है। पहले इससे निपटे, फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। पहले इससे निपटे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको निपट ही नहीं पा रहे तो कैसे करोगे? और कोई अभी इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट कि मेरे को क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हमें इससे निपटना है। ओके, और कोई बच्चा कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। सर मैं आपसे हेल्थ से कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बोलिए। सर जैसे कि अगर कोई है तो उसकी अगर लंबाई नहीं बढ़ रही तो हमें लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, अच्छा खाओ पियो, आपके हाथ में थोड़ी है। अगर आपके हार्मोन्स ठीक हैं और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो नथिंग टू वरी। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही तो 2 कारण होंगे, या तो आपको हार्मोन्स की कमी होगी। अगर हार्मोन्स की कमी है तो उसका इलाज कराओ, और अगर आपकी हाइट, पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो आपकी भी छोटी होगी। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी कमी है? बेटे ये तो आपका डॉक्टर ही बताएगा। जिस स्कूल के अंदर हो वहाँ का जो डॉक्टर होगा वो आपको बताएगा। तो बेटा हर स्कूल के अंदर में एक डॉक्टर होता है, हर स्कूल के अंदर में एक डॉक्टर होता है, वही डॉक्टर आपको बताएगा। ओके सर। Hello. यस बोलिए। A very good afternoon, respected Dr. Sir. बोलिए। Sir, myself Amit Kumar Sharma. I am working as a science teacher in government, Delhi government. Sir, really, I am really thankful to you. मैंने आपको सबसे पहले सुना था, एक CPR का हमारा सेशन लिया था आपने बहुत पहले, मुझे आज भी याद है। और जितने अच्छे तरीके से आप हमारे स्टूडेंट्स को और उनको समझा रहे हैं, इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद आपका करता हूं तहे दिल से सर। और जिस प्रकार आप एक सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि दे आर द अपकमिंग सिटीजन्स, और ये बच्चे जितना मैक्सिमम जो मैसेज है वो हमारी सोसाइटी में पहुंचा सकते हैं, उसके बराबर शायद हम भी नहीं पहुंचा सकते। तो इसके लिए सैल्यूट करता हूं मैं सर, आपको भी, साथ में नेशनल साइंस सेंटर की पूरी टीम को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर अभी जो है बच्चे जो है थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे थे। एक मैं क्वेश्चन देख रहा था चैट बॉक्स में, बच्चे ने लिखा हुआ है कि क्या केमिकल कंपोजिशन क्या है वैक्सीन का, तो इस पर थोड़ा वैक्सीन के अंदर में एक तो जीन है। आपने वायरस का जीन लिया, उसको आपने मॉडिफाई किया, उसको आपने डीएनए में कन्वर्ट किया, उसके साथ में आपने दूसरा वायरस लिया और दूसरे वायरस के साथ में आपने उसको हमारे शरीर में डाल दिया along with some preservatives। प्रिजर्वेटिव में जो इन्फेक्शन करता है हमारे शरीर में, दैट इज कॉल्ड, जो प्रिजर्वेटिव में सेकंड में हमारे यहाँ इन्फेक्शन करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीसॉर्बेट 80। पॉलीसॉर्बेट 80 वो मेरे शरीर के अंदर में एलर्जी करता है। दैट्स व्हाट इट इज। Yes, Good afternoon, sir. Sir, I'm Abhilasha, and I wanted to ask you that what should teenagers who are not eligible for vaccine do if they are infected from the new Bombay strain? अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि वायरस ने बोला है कोई टीनेजर है ही नहीं, उसने बोला है 12 साल के बाद आप एडल्ट हो। इस वायरस ने क्या कहा है कि 12 साल से ऊपर कोई टीनेजर नहीं है, वो बड़ा हो गया है। ये वायरस ने क्लियर कर बोला है। तो अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है, बिहेव लाइक एन एडल्ट पर्सन, व्हाई यू आर बिहेविंग लाइक ए टीनेजर? So sir, what are some precautions that they should take? जो मम्मी पापा लेते हैं वो आप लोगे, जो आप लोगे वही मम्मी पापा लेंगे।
And तो sir, आपका what तो if they are infected from the COVID? Like, are there any some special measures that they should take to get better वही recovery? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रिकॉशंस आप लोगे वही प्रिकॉशंस मम्मी पापा को लेनी है। सो आपने क्या प्रिकॉशंस लेनी है? न्यूट्रिशन अच्छा रखना है और अनजान व्यक्तियों से आपने दूर रहना है 6 फुट 3 फुट के लिए, और मास्क पहनना है। मास्क का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी घर में बैठा है तो मास्क पहन रहे हैं। अभी मैंने मास्क नहीं पहन रखा, लेकिन अगर कोई बाहर से आदमी आ रहा है तो उससे आप मास्क पहनोगे। जो प्रिकॉशंस आप लोगे वही मम्मी पापा लेंगे, उल्टा नहीं। गुड मैं आफ्टरनून तो सर। आज ये बोल ही नहीं रहा कि मम्मी पापा को फॉलो करो, मैं तो ये बोल रहा हूँ मम्मी पापा आपको फॉलो करें। गुड आफ्टरनून आप सर। देश की शान हो, आप बढ़ा सकते हो, आप इस बीमारी को रोक सकते हो, मम्मी पापा नहीं रोक सकते। यस सर, प्लीज पूछिए सर आप। गुड आफ्टरनून सर। बोलिए सर, अगर किसी का वैक्सीनेशन हो चुका है, आफ्टर दैट उसको 1 वीक के बाद दोबारा से वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या प्रिकॉशंस यूज करने होंगे? देखिए, आज के डेट में मैंने क्या कहा है, अगर आपको वैक्सीन लग गया है 30% लोगों को कोविड होगा, लेकिन वो कोविड हल्का होगा। तो अगर आप अपने आप को बचा सकते हो बचा लो, नहीं बचा सकते तो हल्का कोविड होगा, आप रोक नहीं सकते। ये वैक्सीन 100 में से 70 लोगों को कोविड से बचाएगा और 30% लोगों को हल्का कोविड देगा। लेकिन सर, अगर उनको दोबारा जब कोविड होता है और उनको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी महसूस होने लगती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वही सर? मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको वैक्सीन लगने के 14 दिन के बाद अगर आपको कोविड हो रहा है, रिमेम्बर 14 दिन के बाद अगर आपको कोविड हो रहा है तो सीरियस निमोनिया नहीं होना चाहिए, और अगर वो हो रहा है सीरियस निमोनिया तो फिर ये वायरस बदल गया है। ओके सर, समझ लीजिए। थैंक यू। अगर आपको वैक्सीन लग गया, 14 दिन हो गए, यस सर। ठीक है, 14 दिन हो गए, अब जो वायरस आएगा वो हल्का होगा, और अगर आपको तेज वायरस आया तो फिर ये वायरस बदल गया। नहीं सर, 14 दिन नहीं हुए हैं, तकरीबन 9 से 10 दिन के बाद बुखार होता अगर है आपको 9 दिन में वायरस आया तो एंटीबॉडीज तो बनी ही नहीं ना। ओके सर। जब एंटीबॉडीज बनी नहीं फिर तो वायरस की तरह, नॉर्मल वायरस की तरह बिहेव करेगा। तो सर, उन्हें दोबारा वैक्सीनेशन की जरूरत है या फिर नॉर्मल प्रिकॉशंस यूज करने पुलिस को होंगे? अप्लाई किया, आपने पुलिस को अप्लाई किया और आपने पुलिस को बोला है मेरे घर में सिक्योरिटी लगा दो। पुलिस कहती है 14 दिन के बाद लगेगी। ओके सर। वो 14 दिन तो आपको अपने घर को बचाना है ना। उस 14 दिन से पहले चोरी हो गई तो पुलिस क्या करेगी? तो सर, दोबारा पुलिस को बुलाना होगा या नहीं बुलाना होगा? दोबारा पुलिस को बुलाना पड़ेगा, बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। अगर आपको कोविड हो गया तो नॉर्मल कोविड की तरह उसका इलाज होगा। अगर आपको वैक्सीन लेने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको कोविड हो गया तो फिर तो कोविड का इलाज होगा ना। ये हल्का कोविड नहीं, ये हल्का भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको 2 वैक्सीन लग गए हैं और उसके बाद अगर सीरियस कोरोना होता है देन आई एम वरिड। जैसे अभी 40 लोगों को 2 वैक्सीन लगने के बाद में 40 लोगों को लखनऊ में कोविड पॉजिटिव आया, उसमें से 20 को पता ही नहीं है और 20 को हल्की बीमारी है। तो सर, ये ज्यादा सीरियस हो सकता है 2 वैक्सीनेशन के बाद? हाँ जी, ये जो 2 वैक्सीनेशन के बाद जो कोरोना आता है दोबारा, वो कुछ ज्यादा सीरियस हो सकता है? नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा सीरियस है देन आई एम वरिड, तो इसका मतलब है वायरस बदल गया है। अभी तक जितने भी केसेस वैक्सीन के बाद आ रहे हैं वो इतने हल्के हैं कि लोगों को पता भी नहीं लग रहा। ओके, तो सर उसके लिए क्या प्रिकॉशंस यूज करने होंगे जो 2 वैक्सीनेशन के बाद आता है? प्रिकॉशन तो वही है कि जो आदमी खांस रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, उससे दूर रहो। ओके सर। अगर कोई आदमी आ रहा है आपके पास में, भाई अगर कोई भी आदमी गया है बोला मैंने आज RT-PCR टेस्ट कराया और घूम रहा है, तो वो गलत है ना। अगर एक आदमी ने टेस्ट के लिए बोला है कि मैंने आज RT-PCR टेस्ट कराया, बड़े खुशी से लिख रहा है, फिर लोगों से मिल रहा है, वो तो गलत हो गया ना। फिर तो वो बीमारी फैला रहा है अगर उसको सिम्टम्स है तो। अगर आपको खांसी और बुखार है, घर में बैठो, आप दूसरे लोगों से ना मिलो। अभी क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप IPL का बायो बबल देखें, IPL का बायो बबल, वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि रोजाना आप डिक्लेयर करोगे कि मेरे को लास्ट 24 घंटे में खांसी जुकाम तो नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आप फील्ड पे नहीं जाओगे
और अगर आप जो है खांसी जुकाम के साथ बाहर निकल रहे हो कि जब तक RT-PCR की रिपोर्ट नहीं आएगी मैं लोगों को मिलूंगा, तो फिर बीमारी फैलाओगे। सर Okay, sir. एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए कौन सी वैक्सीन बेटर है? किसके लिए? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। नहीं, किस उम्र की बात कर रहे हो? सर नॉर्मल पेशेंट्स। नहीं, किस उम्र? अभी तो 45 साल से कम तो Above- वैक्सीन मिल ही नहीं रहा, तो किस उम्र की बात अबव कर रहे 60। हो? कोई भी वैक्सीन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हो। लेकिन अगर आप बूढ़े हो, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, बीमारियां अनकंट्रोल्ड हैं, तो कोवैक्सीन विल बी बेटर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर घर में किसी एक को कोविड हुआ है और बाकी के 3 मेंबर्स उन्होंने अपना टेस्ट कराया है और वो नेगेटिव आ रहा है, तो डॉक्टर बार बार कह रहा है कि नहीं, डीम टू बी पॉजिटिव। डॉक्टर बार बार कह रहा है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं और एक पॉजिटिव आया है तो बाकी 3 भी पॉजिटिव हैं, चाहे टेस्ट नेगेटिव आए। डीम टू बी पॉजिटिव। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? दोबारा टेस्ट कराना नहीं, चाहिए? दोबारा या टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, उनका इलाज चालू करो। और वो फिर किस कैटेगरी में आएंगे? नेगेटिव में या वो पॉजिटिव है लेकिन दे विल बी एसिम्प्टोमेटिक है? कंसीडर्ड एज सस्पेक्ट। ओके, तो वो एसिम्प्टोमेटिक कैटेगरी में रहेंगे क्या? जी हाँ, एसिम्प्टोमेटिक सस्पेक्ट। आप उनको इलाज करोगे, फॉलो करोगे, टेस्ट करोगे तो 5वें दिन करोगे। ओके। और सर थैंक्स फॉर द वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन। आपका सेशन बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी मैं एक नेचुरोपैथ और आयुर्वेदा एक्सपर्ट भी हूँ। मैं बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छा बोला कि कड़वा और कसेला, हमारे जो यंग जनरेशन और टीनेज है वो घर में बना हुआ खाना अगर डेली रूटीन में खाते रहें तो कड़वा और कसेला उसमें डेली रूटीन में रहता है। मेथी दाना हो गया, आपका सौंफ हो गया, और आंवला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और गिलोय भी, और इसके अलावा सहजन की फली, दैट इज ए वंडरफुल फूड आइटम। और जैसा कि आपने बोला कि चीनी, मैदा और नमक, 3 whites आर द रियल पॉइजन अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने सर। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और पूछना चाहता है क्वेश्चन? Yes, sir, I would like to ask a question. Good afternoon, sir. बोलिए। Sir, as someone is seemed to be COVID positive, then is there a requirement of CT scan? हम लोग CT स्कैन तभी करेंगे अगर बुखार 101 से ज्यादा हो, या CRP रैपिडली बढ़ रहा हो, या तीसरे दिन खांसी आ रही हो, तो हम तीसरे दिन CT स्कैन करेंगे। क्योंकि तीसरे दिन में अगर आपने निमोनिया पकड़ लिया तो आप कॉम्प्लिकेशंस होने से बचा सकते हो। ओके सर। सर जैसे कि CT स्कैन मेनली चेस्ट का लिया जाएगा? जी हाँ, चेस्ट का CT स्कैन होता है, लेकिन महंगा टेस्ट है, हर एक के लिए जरूरी नहीं है। 150 रुपए का CRP टेस्ट आपको वही बता देता है। ओके सर। तो गरीब आदमी के लिए CRP टेस्ट। तो सर CRP में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक ही ब्लड टेस्ट होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन। और अगर आपने जीरो कॉस्ट में खर्च करना है तो 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, और अगर 6 मिनट तेज चलने में आपको खांसी आ रही है तो समझ लो निमोनिया हो गया। ओके सर। तो आप सब लोगों को, क्योंकि अब मेरा दूसरा 4 बजे का प्रोग्राम है, आप सब लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम। बच्चा पार्टी, चिल्लर पार्टी को हटाओ और बोलो हम तो गोल्डन पार्टी हैं। जो चिल्लर पार्टी जो आपको बोलते हैं उनको बोलो हम गोल्डन पार्टी हैं, डायमंड पार्टी हैं। आप लोग आगे बढ़ो और इस कोविड की जंग को लड़ाई लड़ो। हम हार गए हैं, आप ही लोग जिता सकते हैं हमें। Dr. Agarwal sir, on behalf of National Science Center, basically I'm very grateful to you कि आपने बिजी शेड्यूल से ये 1 घंटा निकाला, और बच्चों की कितनी क्वेरीज हैं ये पेरेंट्स। Thank you very much for being with us, sir. Excuse me, sir. थैंक यू बेटा। Excuse me, sir. थैंक यू बेटे। आप बंद कर रहे हैं कि सेशन? Sir, एक last question, please. थैंक यू बेटे, एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर।